Asaduddin Owaisi has entered battleground Delhi by giving a ticket to controversial Delhi riots accused and former AAP councillor Tahir Hussain. Tahir Hussain and his family members met Asaduddin Owaisi today and joined the AIMIM. Tahir Hussain will fight elections on an AIMIM ticket from the Mustafabad Assembly constituency. Remember, Tahir Hussain is out on bail in connection with a Delhi riots case. 5 days ago, High Court quashed an FIR against Tahir Hussain and ordered the charge sheet to be treated as a supplementary charge sheet in a similar FIR. We have Akanksha joining us in the broadcast with more details. Akanksha, of course, questions will be raised on the decision taken by Asaduddin Owaisi of giving ticket to Tahir Hussain. He is facing serious allegations, is out on bail. And how are the political parties responding? Well, you see, Swati, war of words has erupted between Bharatiya Janata Party and AIMIM after ticket was given to Tahir Hussain. BJP is now saying that this is a person who incited violence in the national capital in 2020, and he's the man who's behind the murder of IB officer Ankit Sharma, if you remember. Now, he has been given bail in several cases, but remember, he's one of the main accused in the larger conspiracy case in which Umar Khalid and other people are also accused in that specific case. He's also one of the accused in this case, and that is why now Bharatiya Janata Party is saying that AIMIM is the B team of the Aam Aadmi Party, and they want to incite another riot in the national capital, and they will not allow that to happen. So definitely BJP raising a lot of questions as far as AIMIM giving the ticket to Tahir Hussain. It remains to be seen what Owaisi has to say on this big charge that is coming from the Bharatiya Janata Party, but definitely war of words is erupted with Bharatiya Janata Party asking AIMIM how they can give ticket to someone who is in fact one of the main conspirators as far as the Delhi riots of 2020 is concerned, as is also the main accused in the murder case of IB officer Ankit Sharma. All right, Akanksha, stay on with us. In fact, we have started getting political reactions, and the Bharatiya Janata Party has criticized Asaduddin Owaisi for offering a ticket to Tahir Hussain, an accused in Delhi riots. Let's listen in. ओवैसी ने मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को अपना कैंडिडेट बनाया है। ये वही ताहिर हुसैन है जिसने जमुना पार में दंगे किए, बेकसूर लोगों को मारा, हिंदुओं के घरों को जलाया और आईबी के अफसर अंकित शर्मा का कत्ल किया। ओवैसी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि वो उन लोगों को सम्मानित कर रहा है जो हिंदुओं के घर जला रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। ये बहुत ही नफरत भरी राजनीति है, ये हेट पॉलिटिक्स है, डिसाइसिव पॉलिटिक्स है, डिवाइड करने की पॉलिटिक्स है। इलेक्शन कमीशन को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। Akanksha continues to be with us on the broadcast. He was earlier associated with the Aam Aadmi Party, who was suspended, and now he's part of the AIMIM. Mr. Owaisi also very clearly knows the charges that he's facing and the fact that he's out on bail. BJP, of course, hitting back, saying the man who is accused of, or rather responsible for the death of an officer has been honored in a way. That's the charge. He has been honored by the AIMIM. Well, absolutely, Swati, if you remember, in 2020, when he was made accused in this larger conspiracy case as far as 2020 riots are concerned, he was expelled by the Aam Aadmi Party. Now, in fact, Akanksha, Manjinder Singh Sirsa is joining us on the broadcast. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सिरसा जी, ये क्या है? क्या इसको आप राजनीति भी कह पाएंगे कि क्या ये राजनीति का हिस्सा है कि ताहिर हुसैन जैसे व्यक्ति को ये जानते हुए कि किस तरह के चार्जेस हैं, टिकट दिया गया AIMIM की तरफ से? नहीं, ये कोई राजनीति नहीं है। ये तो एक जो इनाम दिया जा रहा है कातिलों को, इनाम जिस तरह से कभी टीपू सुल्तान के समय में होता था, बाबर, अकबर, औरंगजेब के समय में होता था कि तुम इतने सिर काट कर लाओ तुम्हें ये देंगे, तुम इतनों को धर्म परिवर्तन करो तुम्हें ये देंगे, तुम इतनों का जनेऊ काट कर लाओ तुम्हें ये देंगे। ये तो स्पष्ट हो रहा है कि तुमने हिंदू को मारा है, कितने घर फूके हैं, इतने फूके हैं, तो ठीक है, तुम्हें हम एमएलए का सबसे बड़ा इनाम देते हैं। अगर इस तरह से देश चलेगा, आप सोचिए ये राजनीति कैसी गंदी राजनीति है। ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति करने की कोई नीति नहीं है। ये धर्म को तोड़ने की, लोगों को आग लगाने की, देश के अंदर गदर मचाने की नीति हो सकती है। यही 84 में काम कत्लेआम का। लेकिन सिरसा जी, काउंटर वो ये देंगे, काउंटर ये आएगा कि अभी कोर्ट ने थोड़ी दोषी करार दिया है और अभी तो फिलहाल बेल पर भी बाहर है। देखिए, दोषी कोर्ट पे बेल पे बाहर है, दोषी कोर्ट ने करार दिया है, नहीं दिया, ये लंबा प्रोसेस है। ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई लंबा अलग से हुआ है।
हर दोषी जो है 2-4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, फिर ऊपर ट्रायल कोर्ट में जाता है, उससे क्या इससे उसका अपराध कम हो जाता है? क्या वैसे ये बात मानेंगे कि कल को जब इसको सजा हो जाएंगी उसके बाद वो राजनीति से संन्यास ये कहकर ले लेंगे कि मुझे भी राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, मैं ऐसे कातलों को टिकटें दी? क्या वो ये मानते हैं? फिर वो कहेंगे कि सजा होगी, मैंने पार्टी से निकाल दी। अरविंद केजरीवाल ने भी यही किया, अब मैंने इसको पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब लाते क्यों ऐसे लोगों को? जब आपका राजनीतिक मसला हल हो जाता है, पूरी हो जाती है आपकी राजनीतिक मंशा, जो आपके मोटिव में पूरे हो जाते हैं, तो आप उनको बाहर निकाल देते हो। ऑल राइट सिरसा जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप जरा हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शोएब जमई भी जुड़ रहे हैं, जो कि AIMIM के दिल्ली के चीफ हैं। सवाल ये पूछ रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा की, क्या सम्मानित करने का काम आपने ताहिर हुसैन को किया जिसके खिलाफ इतने संगीन आरोप हैं? शोएब जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी मैं सुन पा रहा हूँ। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है और कोर्ट ये तय करता है कि कौन दोषी है और कौन नहीं। कोई राजनीतिक पार्टी तय नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी की अगर नेताओं की लिस्ट हम गिनाना शुरू कर दें कि कितने संगीन मामलों में इनके नेता जो है संलिप्त हैं और वो आज विधायक भी है, सांसद भी है, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत समय मुझे लगेगा इसको लिस्ट गिनाने में। इसलिए ना केजरीवाल की कोई नैतिकता है, ना भारतीय जनता पार्टी की कोई नैतिकता है। सब जानते हैं कि जस्टिस लोकुर कमेटी ने जो ये रिपोर्ट सौंपी थी उसमें बताया साफ तौर पर किस तरह भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल दिल्ली दंगों के लिए जिम्मेदार थे। और मैं मानता हूं और हमारी पार्टी मानती है। लेकिन शोएब जी, क्या ये बेहतर नहीं होता कि कोर्ट से उनको बेगुनाह साबित कर दिया जाता, फिर वो अगर आपकी पार्टी का हिस्सा बनते, तो क्या वो बेहतर नहीं होता? अभी आपको नहीं लगता कि पूरा फोकस जो है वो चुनाव से हट करके इस बात पर हो जाएगा कि AIMIM ने एक ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जिनके खिलाफ इतने संगीन आरोप है? केजरीवाल साहब दोष मुक्त हो गए क्या? वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? मनीष सिसोदिया दोष मुक्त हो गए जो जेल से छूट के आए? या आधी किससे ज्यादा जो आम आदमी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स होंगे वो सारे आरोपों में अगर दोष मुक्त हो गए हैं तो बताइए। इसलिए नैतिकता का ज्ञान कहीं और देना चाहिए। MIM मजलूम और लोगों के साथ जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ उनके साथ खड़ी है और ये प्रतीकात्मक तौर पर हमारी कोशिश है कि जो दंगा पीड़ित है जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, आज हम उनको टिकट दे करके एक राजनीतिक मजबूती दे रहे हैं। एक मिनट, आप मजलूम, आप ताहिर हुसैन को मजलूम कह रहे हैं? जी बिल्कुल मजलूम कह रहे हैं। ठीक है, सिरसा जी भी हमारे साथ हैं, उनसे मैं काउंटर जरूर लेना चाहूंगी। इफ यू हर्ड दैट कॉमेंट, प्लीज गो अहेड। नहीं, मैंने सब सुना। बड़ी बात मुझे लगी, ये खुद मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये दंगे कराए। अब अगर अरविंद केजरीवाल जी ने दंगे कराए तो खुद तो आके उन्होंने दंगे नहीं किए, करवाए तो किससे करवाए? ताहिर हुसैन जैसे लोगों से। और आप आज उनको टिकट देकर आप उनको सम्मानित कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं दोष मुक्त नहीं होगे। हमने नहीं कहा कि कोई दोष मुक्त हुआ है उस पर दोष लगे, लेकिन ये तो बात स्पष्ट है अंकित का वहां पे कत्ल होता है, आप इसको मजलूम बता रहे हैं। कत्लेआम कराने वालों को, जिसके घर से ढेरों पेट्रोल बम पकड़े गए, जिसके घर से पत्थर पकड़े गए, असला पकड़ा गया, आप उसको कह रहे हैं कि ये मजलूम है। भाई साहब, अगर ये मजलूम है तो बता दीजिए फिर दोषी कैसे होते हैं? किन उनके घर से, दोषियों घर से क्या मिलेगा तो आप उनको दोषी मानेंगे? जिनके घर से पेट्रोल बम मिलते हैं वो तो आप मजलूम मान रहे हैं आप तो उनको। ये बहुत गंदी राजनीति है, ये हमारे देश को कहां ले जाएगी? आज ये देश को सोचना पड़ेगा। मैंने शोएब जमई, क्या मुझे किया था यही औरंगजेब बाबर अकबर ने किया था। और शोएब जमई, क्या मुझे वो सेक्शंस याद दिलाने की जरूरत है जो कोर्ट ने लगाए थे? देखिए, हमारी पार्टी ने फैसला लिया है और हम फैसले पर अडिग हैं और हम सिर्फ यही नहीं, दिल्ली के अंदर कई और प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे जिनको आज तक दिल्ली की पार्टी ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने उनके साथ जुल्म किया, नाइंसाफी की और उनको मौका मिलना चाहिए। इस लोकतंत्र जनता को डिसाइड करने दीजिए ना। मुस्तफाबाद की जनता तय करेगी, दिल्ली की जनता तय करेगी। अन्याय की बात आप कैसे कर रहे हैं? कोर्ट ने कौन कौन से चार्जेस फ्रेम किए थे मैं आपको बताऊं, सेक्शन गिन के बताऊं। सेक्शन 147 राइटिंग, 148 राइटिंग आर्म्ड विद डेड। आपको भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के कितने सारे सेक्शंस हैं और हम अभी फिलहाल ताहिर हुसैन की बात कर रहे हैं। हम ताहिर हुसैन की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अन्याय किया है ताहिर हुसैन के साथ। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के ऊपर जितने मुकदमे हैं उनकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? एक तरफा बात क्यों करते हैं? नहीं, आप और हम अपने प्रत्याशी के साथ दिल्ली चुनाव खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ठीक है, आप डिसाइड करने दीजिए। ठीक है, आप कह रहे हैं क्या? ठीक है, सुनिए शोएब जमई सुनिए। नहीं शोएब जमई सुनिए, जो टिकट देने का काम आपने किया है ना, उनको आप पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, लोगों का प्रतिनिधि बना करके मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सवाल पूछा जाएगा और वो लोग भी आपसे सवाल
सवाल पूछेंगे कि किस तरह के व्यक्ति को आपने टिकट दिया है। लेकिन सिरसा जी, प्लीज रिस्पॉन्ड टू द काउंटर कमिंग इन फ्रॉम शोएब जमाई। कह रहे हैं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में कितने दागदार लोग हैं, उसकी लिस्ट भी गिनवा देंगे। देखिए कत्लेआम करना, एक पुलिस अफसर को मार देना, घर से सीधे असला बरामद होना, पॉलिटिकल, मैं ये नहीं कह रहा पॉलिटिकल लोगों पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी होती है, वेंडेटा के तहत भी मुकदमे दर्ज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी बात जायज हो सकती है। पर यहाँ तो शरेआम सबके सामने देखा है उनके घर से कैसे असला मिल रहा है, पेट्रोल बम मिल रहे हैं। और कहा कोर्ट ने चार्जशीट, जो कि मैंने खुद पीसी करी थी चार्जशीट की, मुझे आज भी याद है कोर्ट की मैंने ऑब्जर्वेशन जब पढ़कर सुनाई थी, मेरी खुद की रूह कांप उठी थी उसको ऑब्जर्वेशन को पढ़ते, जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था ड्यूरिंग द चार्जशीट। और ये तक कहा कोर्ट ने उस वक्त कि एक संयोजित तरीके से तय किया गया था कि इस इलाके में दंगे फसाद किए जाएंगे, पेट्रोल पंप एकत्रित किए गए थे और ऐसा असला घर पे तैयार किया गया था पहले। तो आप बताइए, जब कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ऐसी है, आप उसको भी मानने को तैयार नहीं है और आप एक कातिल को, एक दंगई को, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को मारने का काम कर रहा है, तो फिर तो आप सीधा ही कह दीजिए हिंदू का सिर काट के लाओगे, उसके घर को जलाओगे। और चलिए सिरसा जी, आप कह रहे हैं अपीजमेंट, आप कह रहे हैं कि अपीजमेंट है और एक समुदाय विशेष को अपीज किया जा रहा है दूसरे के खिलाफ लड़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच मिस सिरसा एंड शोएब जमाई फॉर joining us on the broadcast. Earlier, the Bharatiya Janata Party also held a press conference on this issue, criticizing the decision of AIMIM to give ticket to Tahir Hussain. Let's play out an excerpt. अभी थोड़ी देर पहले देश में लोगों को बांटने और आग लगाने के लिए मशहूर एक आदमी, कुख्यात ओवैसी, उसका एक ट्वीट आया है और ट्वीट दिल्ली के लोगों के लिए बहुत सारे सवाल खड़े करता है। ओवैसी की पार्टी ने यह घोषणा की है कि वो आदमी जिसकी घर में बम मिले, ये पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, मंदिर की तरफ निशाना साधती हुई गुलेल लगी हुई मिली, पेट्रोल बम मिले, पत्थरों का जखीरा मिला, जिसके घर के अंदर युवा तेजस्वी आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का न केवल मर्डर हुआ बल्कि 400 बार चाकुओं से गुदा हुआ वो शव नाले से निकलता हुआ, ये देश कभी भूल नहीं सकता उस दर्दनाक क्षण को, उस पल को। ऐसे ताहिर हुसैन को, जिसका खुद का बयान कोर्ट में दर्ज है कि वो दिल्ली के हिंदू समाज के पलायन के लिए साजिश रच रहा था, ऐसे ताहिर हुसैन को दिल्ली के चुनाव में उतारने की एक ट्वीट ओवैसी के द्वारा की गई है। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि चुनाव से ठीक पहले, आज से 5 साल बाद पहले भी यही एक्सपेरिमेंट किया गया था। शाहीन बाग के नाम पर, चांद बाग के नाम पर, जाफराबाद में, इंदरपुरी में, दिल्ली में 10 जगहों पे रास्ते बंद करके यही एक्सपेरिमेंट चुनाव से ठीक पहले 5 साल पहले किया गया था। और दिल्ली भूली नहीं है कि 10 फरवरी को चुनाव का परिणाम आया था और 12 दिन के अंदर इसी ताहिर हुसैन के नेतृत्व में दिल्ली में किस प्रकार का दंगा किया गया। दिलबर नेगी, उत्तराखंड का बच्चा, जिसको पहले हाथ पैर काटे फिर जिंदा जला दिया गया, दिनेश खटीक जी जिनको मारा गया, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी जिनकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई। ऐसे न जाने कितने पाप ताहिर हुसैन और इस गैंग के द्वारा 5 साल पहले दिल्ली में किए गए। ये उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा दिल्ली में करने की कोशिश की जा रही है।